Yes, start. So net profit starter is net profit. Okay. Then next, so याद है ना फॉर्मेट? मैं यहाँ पे just for an example के लिए लिख देता हूँ. Starting with net profit as per P&L. Then add. Addition क्या होगा? Tell me. Heading. What's the heading? Expenses disallowed or considered separate. And less Income disallowed and considered separate. income disallowed and considered separately. I hope कि सबको ये फॉर्मेट याद हो. Okay, because just business profession business profession के केस में only हम profession income minus professional expenses, then we'll get taxable income from profession. But in case of business हम ये starter से solve करें. So starting with first one, salary. Tell me क्या होगा? Add or Ignore. advance tax. Add होगा sir. आएगा. Yes. Any types of tax, ठीक है, will be disallowed and add होगा वो except sales. Next, provision for bad debt. Add होगा sir. Add. Are you sure? Add होगा sir. Yes, sir. Yes sir. Sure sir. Yes, add होगा. Provision for given नहीं होता, only bad debts is given. Then Ignore. तो इग्नोर करते थे. ignore. Very good. Next, insurance, but insurance is bifurcated into two parts: of shop and of own life. So Own life का add करेंगे sir. 4,000 ऐड करेंगे. 1,250. add होगा. Very हाँ good. सॉरी वो लाइक yes. Rent, Ignore. Free distribution of samples. इग्नोर. Sure. Yes sir. Ignore sir. Ignore. Yes sir. Ignore होगा sir. Ignore होगा. इग्नोर है सर. फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है. Yes sir. Advertisement expense. Please don't look at my face. Yes, we will. नहीं sir, ignore ही है sir. Confident है sir. Right. Ignore. Next, wealth tax. ऐड होगा. Add. Add होगा sir. Add होगा. Very good. Next, stationery. Ignore. Depreciation. Ignore होगा sir. सर क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया हुआ सर. सर इग्नोर. सिर्फ पीएनएल वाला होता तो हम लोग इग्नोर करते. Absolutely right. Okay, depreciation is only given in profit and loss. ठीक है, adjustment में given नहीं है. That's why we will ignore it because ये right वाला depreciation है. Correct है. That's why. Okay, next, bonus to staff. Ignore होगा सर. Okay, अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो. Anything related to staff or anything related to employee purpose के लिए अगर कोई भी spend किया हो, ठीक है, that we will ignore. Okay, वो business का expense consider करेंगे. Okay, next, net profit. सर वो तो बेसिस है. उससे चाचा. चालू कर. Gross profit, ignore. Dividend from Ignore. Indian company. सर माइनस कर. इग्नोर. हाँ, माइनस तो लेस होगा. माइनस करेंगे सर. Less subtract. हाँ करें. सॉरी. होगा. लेस होगा सर. minus. Ignore नहीं होगा because this is not business income. Next, dividend from foreign company. Less होगा sir. लेस होगा. लेस होगा ये भी. Business income नहीं है. Next, bad debts recovered. Ignore sir. ये इग्नोर होगा सर क्योंकि बिजनेस का ही है सर. बैड. ये इग्नोर होगा लेकिन बिजनेस. ओके चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं. ओके, लेट्स सी. नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी. माइनस होगा सर. लेस बिकॉज दिस इज नॉट बिजनेस इनकम. ओके, सो ये जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं, ये जो डेबिट साइड एक्सपेंसेस वी विल ऐड बैक एंड क्रेडिट साइड वी विल सबट्रैक्ट. ओके,
नेक्स्ट एडजस्टमेंट सैलरीज इंक्लूड, ओके हमने ऊपर सैलरी को इग्नोर करा था, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट में गिवन है सैलरीज इंक्लूड ₹1900 पेड एज अ सैलरी टू स्टाफ फॉर कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, फुल स्टॉप। टेल मी। सर इग्नोर करेंगे क्योंकि ये करेंगे। इसमें भी 1900 स्टाफ को ही दिया जा रहा है। यस, सो वी विल इग्नोर, जस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, कंफ्यूज करने के लिए, ओके, so don't be confused. Okay, next one, bad debts recovered. देखो यहाँ पे bad debts recovered के लिए information है जो हमने ऊपर ignore करा। Bad debts recovered were not allowed as deduction in the earlier years during which it was written off. मतलब जो last year हमने उसको written off करा था वहां पे इसका deduction हमने नहीं लिया। So tell me, सर व्हाट डज इट मीन कि हाँ लास्ट ईयर हमने उसका डिडक्शन अलाउड नहीं करा? याद है अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्लीज सी दिस। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमने क्या करा, ऐड इंस्टेड ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इफ बैड डेट्स ओनली इज गिवन देन, तो हम इग्नोर करते तो थे। इग्नोर करते थे क्यों इग्नोर करा हमने? व्हाई वी इग्नोर? सर क्योंकि प्रोविजन था। हाँ नहीं, सॉरी बैड डेट्स था तो बिकॉज इट्स अ रियल बैड डेट्स, पैसा डूब गया रियल एक्चुअली में, है ना। सो हमने ऐसे देखो, अगर मान लो एक्चुअल में बैड डेट्स था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है एडजस्टमेंट में कि एक्चुअल बैड डेट्स था, ठीक है, लेकिन उसका हमने डिडक्शन लास्ट ईयर नहीं लिया, ठीक है। सो ये बैड डेट्स रिकवर्ड जो इस साल दिया है ये आपका बिजनेस इनकम नहीं होगा, दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके, this will be your income from other source. So remember that कि अगर bad debts recover हो रहा है, okay, ठीक है, तो वो IFOS में जाएगा, not business income. Is that clear to everyone? Please tell me. यस सर। यस सर। ठीक है, next one is compute taxable income of Mrs. क्या नाम दिए थे आपने? रितिका। Ritika. Sorry, I forgot. Compute the taxable income of Miss Ritika under the head income from business profession for the assessment year 2021. Okay. So ये तो सिंपल है, इजीली आ जाएगा आपको, है ना? यस। So just starting मैंने यहाँ से करा net profit P&L 88,500. Okay. Then उसके बाद addition क्या क्या होगा? First one is advance tax. Okay. 1,100. Next provision for bad debts. प्लीज आप लोग बोर्ड का स्क्रीन भी ध्यान में रखना, ठीक है, मैं वहां पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3,600. देन नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑफ ओन लाइफ 1,250. नेक्स्ट वन इज वेल्थ टैक्स 1,850. एंड और कुछ है? नो सर। That's it. Okay. So total and then income में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? First of all, depreciation as per ID, but not given, so ignore it. Dividend from Indian company 2,500. Then dividend from foreign company 1,500. Next, bad debts recovered 3,000. And last one, winning from lottery is 5,000. Okay, just add this, total कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 7,800. Check it. Yes, sir. यस सर। And total of these two, 8,088 plus 7, that means 95, 96, 300. Right? 96,300। 2, यस सर, करेक्ट। 3, 3, 6 and 5, 11, 12. 12,000। 12,000 income. And then minus 12,000, that means 84,300. Right? 84,300, check it. यस सर। So taxable income from business is 84,300. Okay? यस। जस्ट एक बार हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं क्या हमने राइट करा।
See, net profit as per 88,500. Then advance tax, provision for bad debts, insurance of own life and wealth tax. Okay, aggregate 7,800. हमने भी वही करा. Then उसके बाद income either disallowed and considered separately. Dividend. Then bad debts recovered. ध्यान रखो, देखो यहाँ पे हमने माइनस करा है. Okay, and winning from lottery. Total is 12,000. So final answer is 84,300. Okay, and देखो just मैंने नीचे point भी issue करा है. Important points. First one is expenditure incurred on market research is a business expense, hence allowed as a deduction. Okay, ये business expense है, that's why हमने इसको ignore करा. Wealth tax, advance tax or any tax on income is not allowed as deduction. ये भी आपको पता है. Next one, dividend from Indian company and foreign company is taxable under IFOS, and winning from lottery is an income from other sources. Yes, similar. ठीक है. So any question? Tell me, किसी को डाउट है? सर ये लिखना पड़ेगा सारा पॉइंट्स हमें एग्जाम में? जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने लिखा है. ठीक है. ओके सर. इफ यू कैन यू कैन. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी. ओके, तो एक डाउट है. यस यस. तो अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स का वो नहीं होता तो वो नहीं आता क्या फॉर्मेट वो भी में? हम उसको इसमें ही लिखते थे. यस, अगर वो बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो फिर हम उसको बिजनेस इनकम अंडर अज्यूम करते. ओके सर. ये पॉइंट ध्यान में रखोगे, अगर ये एडजस्टमेंट गिवन नहीं होता देन हम बैड डेट्स को इग्नोर करते. ओके, यहाँ पे हम माइनस नहीं करते. ओके, यस. एंड एनी और किसी को कोई डाउट? जो न्यू स्टूडेंट आए थे, मैं नाम भूल गया, उसको कोई डाउट है? न्यू स्टूडेंट, आपको कोई डाउट है? टेल मी. प्रेजेंट है कि नहीं है? मुझे कुछ पता ही नहीं है. अच्छा, शी इज देयर. यस. ओके, सो डाउट आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ पता ही नहीं है. यस, ये भी सही है. ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया. थोड़ा बहुत. ओके, चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, आ जाएगा. ओके. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा बाहुबली टाइप क्वेश्चन है. ओके, सो ध्यान रखो जरा. चलो नाम दे दो फटाफट, थोड़ा डिफिकल्ट सम है. कौन नाम दे रहा है अपना? जस्ट टेल मी. सर यश. Okay, Yash. Mr. Yash provides you the following information on the basis of which you are required to compute his income from business. Sir, यहाँ पे तो एक चीज मिसिंग है. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट गिवन है ना. यहाँ पे डायरेक्टली आपको पॉइंट वाइज इन्फो दिया है. ठीक है, डायरेक्टली फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट 279,750 एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर्स ऑफ असेट्स ओन्ड. ओके, तो कितने असेट्स ओन्ड है मिस्टर यश के पास? 3 असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आल्सो गिवन. देन WDV as on 1st April 2019 is given. Then purchase during the year and sold during the year. हमने फर्स्ट वाला परचेज किया, देन उसको सोल्ड नहीं करा. सेकेंड वाले असेट्स को परचेज भी करा एंड ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड भी करा. थर्ड वाले को ना परचेज, आइदर परचेज नॉट सोल्ड. ओके, नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ गिवन. ओके, ये सेकंड पॉइंट पे रहते हैं. जस्ट टेल मी, जो हमने असेट्स परचेज करा है क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर. कैन वी डिडक्ट फ्रॉम बिजनेस इनकम? याद करो वो लास्ट लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर में मैंने No, sir. बताया था. सर ये तो एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता. यस, Sir, कैपिटल असेट्स, अगर आपने इफ यू परचेस्ड एनी कैपिटल असेट्स तो आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते. लेकिन मैंने ये भी बताया था कैपिटल असेट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो किसका मिल सकता है? डेप्रिसिएशन का. यस, डेप्रिसिएशन का. ठीक है, डेप्री का आप ये डिडक्शन ले सकते हो. ओके, सो देयर आर 3 कैपिटल असेट्स. इस पे जो भी डेप्रिसिएशन आएगा यू हैव टू कैलकुलेट एंड देन सबट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ.
अच्छा, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दिया है, जस्ट ये चेक करो, नेट प्रॉफिट इज गिवन। नो सर। नो सर। ओके, ये तो और प्रॉब्लम हो गया, नेट प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। देन इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक्चुअल रियल वाला नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो रियल नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, देन जैसे वी विल गेट नेट प्रोफेशन में क्या वैसे? यस, जैसे प्रोफेशन में करा हमने वैसे, ठीक है, बिकॉज इसमें नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, दैट्स व्हाई हम इसको फॉलो कर रहे हैं। सो ध्यान रखो। सो देखो यहाँ पे टेल मी, ये जो इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं वो डिडक्ट होगा, ऐड होगा, डिडक्ट होगा डेप्रिसिएशन? Yes, मैं अभी डिडक्ट होगा। यस, सी क्वेश्चन में इन केस देखो यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि आप कंफ्यूज हो। सी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, नेट प्रॉफिट स्टार्टर हमारा ये है। देन हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है जिसको मैंने हाईलाइट करा है उसको हमने ऐड करा, एंड जो बिजनेस के इनकम नहीं है उसको हमने माइनस करा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे, बट इन क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये दिया है क्या, टेल मी, नेट प्रॉफिट गिवन है? नहीं सर। नहीं दिया है ना, तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे प्रोफेशन का आपने करा वैसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट इनकम माइनस एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस, एंड देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट। सर व्हाट इफ अगर वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, देन तो इग्नोर करें। यस, तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है, देन वी विल इग्नोर इट। सर बट क्वेश्चन में तो हम लोग को इनकम फ्रॉम बिजनेस ही निकालना पूछा है सर। हाँ, ऊपर इनकम लिख को ही बिजनेस दिए। कैलकुलेट करने बोला है, तो ऐसा कोई फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है ना कि अगर आपको देखो नेट प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट ना, बट यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मेट कैसे सर यूज तो एक बार नेट प्रॉफिट निकल जाए तो हम लोग को वापस सॉल्व करना पड़ेगा सर? नहीं, जब नेट प्रॉफिट रियल वाला निकल गया तो फिर हम वापस ही क्यों करेंगे? नहीं सर, वो इनकम प्रॉपर जो फॉर्मूला था इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला फॉर्मेट फॉलो करके नहीं टैक्सेबल इनकम निकालना। नहीं वैसा नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्या करो, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के हैं वो डिडक्ट करो, देन यू विल गेट एक्चुअल नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, दैट्स इट। फिर से वो प्रीवियस फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। क्लियर मनन? आई होप क्लियर। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, सो टेल मी, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा एज अ डिडक्शन और नो? इसको माइनस करेंगे ना? हाँ सर। Yes, यस sir. सर। यस। Yes, sir. सैलरी टू स्टाफ? यस सर, माइनस होगा। सर माइनस। एक्सपेंस माइनस यस, एक्सपेंस है, ये माइनस होगा। नेक्स्ट, प्रोफेशन टैक्स? माइनस होगा सर। एक्सपेंस आर यू श्योर? सर माइनस नहीं होगा सर। यस, माइनस नहीं होगा ये। नहीं होगा क्योंकि बिजनेस का। यस, मैंने क्या बोला आपको कि जितने भी बिजनेस के एक्सपेंस है यहाँ पे दिए, सिर्फ जस्ट वो ही माइनस करना है, ठीक है। जो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है उसको माइनस नहीं करना है। टेल मी, प्रोफेशन टैक्स इज बिजनेस एक्सपेंस? नो सर। नो No, सर। sir. कौन सा टैक्स बिजनेस एक्सपेंस होगा? टेल मी विच वन? ओनली सेल्स टैक्स। ओनली Sales सेल्स टैक्स। यस, अदर देन सेल्स टैक्स वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, कोई भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। लेट मी नो इफ एनीवन। सो प्रोफेशन टैक्स वी विल इग्नोर, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। वी विल सबट्रैक्ट, प्रोफेशन टैक्स इग्नोर। इलेक्ट्रिसिटी बिल कर लेंगे। लेंगे Less लेस होगा. करेंगे सर। लेस होगा, यस। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? सर इग्नोर। Ignore. We will ignore it. Yes, we will ignore it. Okay, very good. Next, general expense? होगा माइनस। माइनस होगा। लेस होगा सर। होगा. Yes, Minus. minus. Bonus to staff? माइनस। Less. Minus.
माइनस होगा। अभी जस्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टाफ वेलफेयर वी विल डिडक्ट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, लेस होगा। लेस होगा सर। यस लेस होगा। इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग वी विल सब्ट्रैक्ट। वेरी गुड। द WDV ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 8,000। लेस होगा, डेप्रिसिएशन है तो नहीं, तो प्रॉफिट हुआ ना फर्नीचर सोल्ड करके। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये हो गया है क्या? एक वेट अ मिनट। ओके सर फर्नीचर का WDV दिया हुआ है सर। वही 20,000 20,000 लिखा हाँ है। हाँ, यस यस, जस्ट गिव मी 20 सेकेंड, ओके, बिकॉज WDV इज गिवन ना। यस यस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है ना, वो जस्ट एडिशनली ऐसी टाइप हो गया। दूसरे क्वेश्चन का था ये, वो रॉन्गली बाय मिस्टेक टाइप हो गया। ठीक है, ये नहीं है, बिकॉज WDV ऑफ फर्नीचर इज गिवन नो 20,000। ठीक है, तो आप ये वाला क्या करो, इग्नोर करो। ठीक है, यस सर। ओके, सो टेल मी, यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पे करा देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट वाला आप इग्नोर करना ध्यान से। सो जस्ट यहाँ पे हमने ओके, इनकम के लिए क्या लेना है यहाँ पे? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? इनकम से। सर ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। यस, सो इनकम के लिए इन्फो क्या दिया है? ओनली ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा इनकम में ग्रॉस प्रॉफिट। अब बोर्ड पे भी दिखना है, यहाँ पे 279,750, 2,79,750, एंड देन माइनस एक्सपेंसेस। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहला एक्सपेंस क्या है? टेल मी। फर्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, बट डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा अभी तक? नहीं सर, No, नहीं sir. कैलकुलेट। तो उसके लिए मैं स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो हम बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट बाकी के एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज सैलरी टू स्टाफ, अमाउंट इज 55,000। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 11,670, then general expense 15,750. Next one is bonus to staff 13,650, and last one insurance and repairs 12,000. Okay, बस इतना है। जस्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो डेप्रिसिएशन के लिए देखो क्या कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपको कैन एनीवन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ WDV? रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, वेरी गुड, रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, अच्छा सब लोग बोर्ड का स्क्रीन ओपन करो। ठीक है, आप लोग ये PDF का नहीं, बोर्ड का स्क्रीन शो करो। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे देखो, विजिबल टू ऑल? Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। WDV कैसे मिलता है? ओरिजिनल कॉस्ट, OC मींस नॉट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, ओरिजिनल कॉस्ट, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, देन वी विल गेट WDV। एम आई राइट और एम आई राइट? सही है सर, सही है। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे 3 असेट्स गिवन है ना, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग जस्ट एक लेते हैं, फर्स्ट वाला लेते हैं। हम लोग जस्ट प्लांट एंड मशीनरी की बात करें। ठीक है, सो टेल मी कि ओरिजिनल कॉस्ट कुछ अमाउंट रहा होगा, एंड देन उसमें से डेप्रिसिएशन कुछ माइनस हुआ होगा, देन
हमें WDV क्या मिला 1 अप्रैल 2019 को 1 lakh. 1 लाख. ठीक है. WDV इज 1 लाख. देखो ऐसे फॉर्मेट से आया होगा. ओरिजिनल कॉस्ट वी डोंट नो. डेप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ ये भी हमें नहीं पता लास्ट ईयर का, बट वी नो कि हाँ ये 1 अप्रैल 2019 को WDV कितना था 1 लाख रुपीस था. ठीक है. तो ये साल हमने क्या करा परचेज ड्यूरिंग द ईयर. हमने परचेज करा प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एडिशन करा. Yes, sir. Yes, sir. 30,000. एडिशन अगर इफ वी परचेज सो वो क्या होगा प्लस होगा 1 लाख में और माइनस होगा. Plus होगा. होगा. प्लस. So add purchase amount is 30,000. Okay. Tell me कुछ माइनस हुआ है क्या मतलब सोल्ड हुआ है नहीं सर. नहीं. So सोल्ड के केस में हमने डैश करा. ठीक है. टोटल बैलेंस इज 1 लाख. 1,30,000. 130. 130 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और 1 लाख पे. टेल मी 130. 1 lakh. 130 पे होगा. 1,30,000 पे कैलकुलेट होगा. ओके. हाउ मच 25%. 5%. ओके. सो कैलकुलेट करो जरा 130 पे 25%. टेल मी फर्स्ट. 500. ये तो 32,500. थर्ड कितना 32,500 चेक राइट है. हाँ. 32,500. Yes, sir. 32,500. बैलेंस इज 97,500. yes or no. Yes, sir. Yes, sir. So ये 97,500 का नाम क्या लिखे? टेल मी. It will be known as. Current value. Yes, absolutely wrong. WDB same. Yes, WDV. Again, it will be known as WDV for next year, na? Means we can say WDV for 1st April 2020. Yes or no? Yes, sir. है ना? So tell me, ये this year का depreciation हम कितना लेने वाले हैं for on plant and machinery? 32,500. 32,500. Similarly, हमने plant and machinery का 32,500 कैलकुलेट करा. Similarly, furniture का भी कैलकुलेट करना है and buildings का भी कैलकुलेट करना है. नहीं समझा? समझा. क्लियर? ओके. देखो मैं समझ गया सर. रफ में मैंने लिख दिया 32,500. ठीक है. प्लांट एंड मशीनरी. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फर्नीचर एंड बिल्डिंग का भी यहाँ पे मैं पेज दे देता हूँ. ठीक है. सो जस्ट मैंने अमाउंट रफ कर दिया. ठीक है. अभी जस्ट आपको ये फिल अप करके मुझे बताना है. टेल मी इन केस ऑफ फर्नीचर कितना लेंगे? WDV इज 20,000. 30,000. 20,000 and addition during the year 50,000. 50,000. 50,000 and sold during the year 15. 15,000. 15,000. Then what will be the net amount? 55,000. 55,000. 55,000. So depreciation on furniture is yes, tell me. Am I audible now?